is related to research field, and it's very important for all the students for the undergraduate and graduate level. So I start with the little bit introduction from myself. Is my voice clear? जी सर, it's clear now. Okay. So I start with the little bit introduction from my side. I'm Najibullah Janna. I'm working as a research associate and also a PhD scholar. And I started my career from Mehran University. I'm from the 2013 batch from environmental engineering, and I did my undergraduate degree in environmental engineering and masters in and also in energy and environmental engineering. During master's research, I got opportunity for the research exchange visit to Politecnico di Torino, Italy also. From my research perspective, I have 15 international publications with high quality journals. You can see my Google Scholar website, and the 3 articles are my under review. Successfully, I have 7 proceeding papers and 10 abstract and in international and national conferences. These are actually the projects that I have worked as a research assistant and a research associate. I was involved in the project writing, reporting, analysis, all the things. 2 of the 3 projects, I was the leader of the group, and I lead and completed these projects. So let's start with the research. That why we are here to learn about the research, why we it is necessary for the students for the research, and here we will learn that from this research how we can build a career. So first, to answer this question, that what is about research. So finding an answer to an unsolved problem, or to the unanswered question, this is actually about the research. Why we are doing the research? The research is actually nothing, is all about the problem that we have to solve. हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो हमारे हमें जहन में है, हमने सोचा है या हमें करना है। जो हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, वो रिसर्च स्टार्ट जो करते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, वो चाहे कोई भी तरह सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, देन अब रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हैं, these includes all about in research providing well documented elements for better understand processes and to inform decision makers. Those problems that we have to research, questions and processes must be of interest to the society, because the research that we are going to be conduct, this must be solved the societal problem, a logical systematic pathway towards knowledge. रिसर्च हमारी ऐसे होनी चाहिए कि हमें उसमें एक सिस्टमेटिक फ्लो हो, सिस्टमेटिक नॉलेज हम उसमें ऐड करें, और कोई भी चीज़ हम जो नॉलेज ऐड करें, दैट मस्ट इंक्लूड लॉजिकल एंड टेक्निकल। अब रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है? वाई रिसर्च इज़ नेसेसरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल इन इंस्टीट्यूट्स. The ultimate aim is to improve the system, increase the productivity, performance for the socio-economic well-being of the citizens. हमारा एम यही है कि हम जो रिसर्च करें उसमें हम जो है सोशो इकोनॉमिक जो सिटीजन्स हैं उसको हम बेनिफिट दें किसी भी तरह से। हम उसको कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, कोई नॉलेज दें, या किसी भी तरह से हम, हमारा एम जो यही है, मकसद ये है कि हम अपने सिटीजन्स हैं उसको हम फैसिलिटेट करें, उसको हम इम्प्रूव करें, उसकी हम जो फैसिलिटेट करें। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च होती है वो किस तरह से होती है, किस टाइप्स की होती है। अगर हम जनरली इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ प्योर रिसर्च भी होती है और अप्लाइड होती है।
हम एज रिसर्च हम बात करें कि जो भी मैंने एक रिसर्च की है, जितने भी मैंने करियर में, वो मैंने अप्लाइड रिसर्च की है। अप्लाइड रिसर्च में इट मीन्स दैट वी हैव टू अप्लाई सम सोसाइटल टू सॉल्व द सोसाइटी प्रॉब्लम। हमने जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है वो लेके उसको उठा के हमने एक रिसर्च करके उसकी सॉल्यूशन डाली है। फॉर एग्जांपल हम जैसे पानी है, सोसाइटी में पानी एक खराब आ रहा है, पोल्यूटेड वाटर है, देन वी हैव टू डिज़ाइन अ फिल्टर। हमने एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया जो एक जरासीम को मारता है, और वो फ़िल्टर जो हमने मार्केट कर दिया, ये हमारी अप्लाइड रिसर्च में आता है। तो इसी तरह से हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है। अगर हम बात करें कि रिसर्च जब स्टार्ट होती है ना, तो रिसर्च द बैकग्राउंड फॉर द रिसर्च, टू स्टार्ट द रिसर्च दैट हैज़ अ रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे डेवलप करना है, ये बहुत ज़रूरी है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जहन में रखते हुए कि रिसर्च जब स्टार्ट करेंगे वो किस चीज़ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जहन में जो आनी चाहिए चीज़, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिसर्च क्वेश्चन जो हो वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर हो, एम्बिग्यूस हो। व्हाट क्वेश्चन डू यू इंटेंड टू आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें आंसर करने हैं, रिसर्च में बताने हैं कि हमें ये क्वेश्चन हमने सोचा है, ये रिसर्च करनी है और उससे ये आंसर मिलेगा, ये फाइंडिंग्स होगी। व्हाट अबाउट डू यू इंटेंड टू सॉल्व, और हमें ये भी सोचना है कि हम क्या चीज़ सोल्व करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम सोच करना चाह रहे हैं। हमें पूरी दुनिया का तो प्रॉब्लम हल नहीं करना, हमें प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कंट्रीब्यूशन के लिए रिसर्च हम उसी तरह से करते हैं तो ताकि हमारी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, नॉलेज एड हो उसमें। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम रिसर्च करते हैं, वो सबसे अहम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इट इज़ कंसिडर दैट इज़ मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी इज एक्चुअली द पैकेज ऑफ टूल्स, मेथड्स, अप्रोचेस अप्लाइड ऑर्डरली, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, इट मस्ट बी इंक्लूड द एनालिसिस। हम जो भी मेथोडोलॉजी करते हैं उसमें जो भी हमारा एक पैकेज है, जो भी मेथड्स होते हैं, वो हमारे मेथड्स जो हो वो बिल्कुल ऑर्डर ही तरीके से हो। जैसे हमारे पास कोई भी एक एनालिसिस है, वो पहल आखिर में आ रही है तो हम उसको पहले लिख रहे हैं, जो पहले हमें करनी चाहिए वो हम उसको आखिर में कर रहे हैं। तो उसका भी ऑर्डर मेंटेन हो। और जो भी हम मेथोडोलॉजी करते हैं उसमें हम मेथड्स जो डेवलप करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि हम अपनी रिसर्च में कौन सी एनालिसिस करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी मेथोडोलॉजी में हमें इंक्लूड करना है। I will tell you that there are many journals, high quality journals, they focus only the methodology. मेथोडोलॉजी पे बहुत फोकस किया जाता है। जब आप पेपर पब्लिश करते हैं, आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं, उसमें बहुत सारा फोकस जो होता है वो मेथोडोलॉजी पे होता है। आपकी अगर मेथोडोलॉजी वीक होती है, चाहे वो आपका एक वर्ड भी उसमें अगर इर्रेलेवेंट आ गया या इम्प्रॉपर आ गया ना, तो आपका पेपर रिजेक्ट होता है। There are many researchers I have seen, they have faced this kind of problem. So हमें जो मेथोडोलॉजी बनानी है, कैसे बनानी है, then I will tell you, और किस तरह से बनानी है ताकि वो एक प्रॉपरली, टेक्निकली, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली सही हो। जो भी हमारी मेथोडोलॉजी होती है एक्चुअली वो हमें क्या होता है कि उससे हमारे जो भी डेटा होती है, आर्टिकल की, रिसर्च की, थीसिस की, हमें उसको कंट्रोल करते हैं पूरी मेथोडोलॉजी को। हमारी मेथोडोलॉजी अगर वीक होगी तो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग होगी वो वीक होगी। चाहे भले आपका टॉपिक कितना ही नॉवेल हो, कितना ही इनोवेटिव हो, चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो, तो मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेथोडोलॉजी हम कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। तो उसका ये होता है कि आप जो भी मेथोडोलॉजी किसी भी थीसिस में या आर्टिकल्स में या प्रोसीडिंग्स में आप जो भी लिखें, तो आप मेथड के बारे में 100% क्लियर हो कि मुझे कैसे करना है रिसर्च और क्या करनी है, किस जगह पे जाना है। तो अगर ये आप इनिशियली क्लियर नहीं होंगे तो आप बीच में रुक सकते हैं। आपके लिए, आपके पास कोई भी एक रास्ता नहीं रहेगा कि आप किस तरह से उसको फॉलो करें। और जो भी आपको मेथोडोलॉजी चाहिए, इट मस्ट बी इनोवेटिव, और इस एक स्टैंडर्ड हो, उसका प्रोटोकॉल हो। अब जैसे मैं जो भी जर्नल्स आप जैसे एल्सवेयर के होते हैं या स्पेंजर्स के या नेचर जर्नल्स होते हैं, आप अगर उसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे तो आप एक डिफरेंट फील करेंगे, उसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे और उसको सिस्टमेटिक डिफाइंड होगा। छोटी सी छोटी चीज जो आप अपनी रिसर्च में कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इंक्लूड इन योर मेथोडोलॉजी सेक्शन।
अब आते हैं कि भाई when you start your research, it is most important that you must uh, frame your conceptual framework. अब conceptual framework क्या होता है कि आप ने एक प्रॉब्लम उठाया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं ये रिसर्च करूंगा और मेरे पास ये फाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले जो मेन थिंग है, आपको राइटिंग के लिए, आपको प्रोजेक्ट लिखने में आपको हेल्प करेगा, और आर्टिकल्स राइटिंग लिखने में, आपको लिटरेचर रिव्यू करने में, रिव्यू आर्टिकल करने में जो आपका फायदा बढ़ेगा और फोकस जो आप रहेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लुक्स लाइक दिस। आप अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक मर्तबा, इफ यू हैव सक्सेसफुली डेवलप द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, definitely you will get good results and good findings from your research. आपने एक मर्तबा अगर आपने सही तरह से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिया, कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क होता है वो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, आप थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं, आप ग्राफिकली भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने एक डिज़ाइन किया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि भाई जो क्लाइमेट चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे CO2 इमिशंस हैं, अब CO2 इमिशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि आर्टिफिशियल फोटो कैटलाइसिस है, CO2 फिक्सेशन टेक्नोलॉजी है, कैटलाइटिक ट्रीटमेंट है। सो अब ट्रीटमेंट से मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, तो आपने क्या होगा, एक पूरी एक रिसर्च को समराइज कर दिया, पूरी चीज समराइज कर दी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। अगर आप अपनी थीसिस में एंड आल्सो व्हेन यू इंक्लूड इन योर रिसर्च आर्टिकल, तो आपकी एक बिल्कुल परफेक्ट एक रिसर्च डायरेक्शन हो जाएगी और आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिसर्च क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे काम करें। जब आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने बिल्कुल सही तरह से डेवलप कर लिया, आप अपनी रिसर्च को फोकस रहते हैं कि मुझे किस तरह से लिटरेचर करना है, इस रिसर्च से मुझे किस तरह से उसको करनी है, उसकी मुझे पॉसिबल फाइंडिंग्स क्या होगी और अल्टीमेट मेरा गोल अचीव होगा या नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अब ये बहुत जरूरी है कि ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन तो है, उसके लिए प्रॉब्लम हमें देखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कि हमें प्रॉब्लम कैसे फाइंड हो। अब जैसे मैं एक बात करूं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें डैमेजेस पाइप्स होते हैं, हमें इस डैमेजेस को कंट्रोल करना है। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें एक कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। अब कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो गया, अब प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके दो तीन स्टेप्स हैं। अब जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम अपने ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल एक सही तरह से लाएं कि हमें ये देखा है, हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाटर सप्लाई लाइन्स है, उसमें डैमेजेस हैं, उसमें लीकेजेस हैं, देन हाउ वी कैन कंट्रोल दिस काइंड ऑफ लीकेजेस एंड डैमेजेस। सो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की या डिस्कशन की, या मुझे एक क्यूरोसिटी है, मैं एक नॉवेल चीज़, एक डिफरेंट चीज़ करना चाहता हूँ, या मुझे अवेयरनेस, एक नॉलेज गैप है, और प्रॉब्लम जो भी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो उसकी मुझे जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कौन सा है। क्योंकि ये पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कौन सा है, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व। और लास्ट वन, दैट इज दीज स्टेप्स कैन हेल्प टू फाइंडिंग द प्रॉब्लम, दैट इज हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। और आप ये सबसे पहले जहन में रखें कि योर रिसर्च डज नॉट स्टार्ट विथ योर मेथोडोलॉजी। आपकी जो रिसर्च है वो आपकी मेथोडोलॉजी से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो रिसर्च है वो आपकी स्टार्ट होगी आपके प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से आपकी स्टार्ट होगी। मेथोडोलॉजी तो आपका एक पार्ट होता है रिसर्च में, थीसिस में, आर्टिकल में। उसमें आप ये बताते हैं कि मुझे रिसर्च ऐसे करनी है और इस तरह से मुझे एनालाइज करना है। तो आपकी जो रिसर्च है डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर मेथोडोलॉजी। और मेथोडोलॉजी को हम कैसे करेंगे, अब मेथोडोलॉजी इज टूल यूज टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन फाइंड, जो आप एक क्वेश्चन की सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो वेयर वी फाइंड गुड मेथोडोलॉजी, ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें मेथोडोलॉजी कैसे पता चले, कैसे फाइंड करें कि मुझे ये मेथड फॉलो करना है।
और ये एक डिफिकल्ट टास्क भी है और चैलेंजिंग टास्क भी है कि हमें मेथड मालूम हो और मेथड का जानना भी हो, हमें एक जान हो, हमारे एक नो हाउ हो मेथड के बारे में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सिंपल आंसर इट इज दैट आप जो भी मेथड फॉलो करें वो आप अपने लिटरेचर से फाइंड करें. आपका जितना ज्यादा लिटरेचर ज्यादा अच्छा होगा, आप उतनी ज्यादा अपनी मेथोलॉजी बना सकते हैं किसी भी आर्टिकल्स में, किसी भी आप थीसिस में, चाहे आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल की आप करते हैं. तो उसमें जो मेथोलॉजी है वो आप फाइंड करेंगे सिंपल और सिंपल लिटरेचर रिव्यू से. और आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं इट मस्ट बी रिलेटेड टू द लिटरेचर. आप जो भी मेथड है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल एक नया मेथड लाएं और आप उसको फॉलो करें. ये ऐसे हो सकता है, मगर आपको उसमें फुल जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे ये मेथड फॉलो करना है और मुझसे ये कर सकते हैं और इससे ये फाइंडिंग मिलेगी. जितने ज्यादा आपके मेथोलॉजी में रेफरेंसेस आते हैं, साइटेशन आती है, आप उसकी मेथोलॉजी की जान आ जाती है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है. जब भी वो आपके पास किसी जर्नल में जमा करवाते हैं तो एक रिव्यूअर जो होता है वो एक अच्छा इम्पैक्ट उसमें क्रिएट होता है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इज अबाउट लिटरेचर रिव्यू. आप लिटरेचर कैसे करेंगे को लिटरेचर रिव्यू एक चीज तो है, एक टाइम कंज्यूमिंग है, एक फ्रस्ट्रेटिंग है, मगर व्हेन यू कंप्लीट दिस टास्क एट द एंड यू विल गेट अ रिवार्ड. आपकी मेथोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है मगर आपको एक रिवार्ड भी मिलेगा. आपकी मेथोलॉजी बिल्कुल एक बेहतरीन से फार्मूलेट हो जाएगी टेक्निकली और लॉजिकली और सिस्टमेटिक वे में. तो मेथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके आर्टिकल में, आपकी थीसिस में, इस चीज में रिव्यू करना. और मेथोलॉजी आप कैसे फाइंड करेंगे? आप अपने लिटरेचर से, आप अपनी नॉलेज से, जब आप उसको फार्मूलेट करेंगे. और ये बहुत इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी थीसिस का और आर्टिकल का. और एक ये हमारा एक प्रिलिमिनरी टास्क है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हमारा एक रिसर्च प्रोसेस होता है, रिसर्च प्रोसेस में मेथोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब जितना ज़्यादा आप लिटरेचर रिव्यू को कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ऑपरेशनल आपकी रिसर्च होगी वो ज़्यादा होगी. इट हैज़ वैल्यू इवन बिफोर द फर्स्ट व्हेन यू थिंकिंग अबाउट रिसर्च क्वेश्चन. तो आप इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आप फर्स्ट स्टेप में जब आप रिसर्च क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं. आप जब एक लिटरेचर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपके लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से कि आप किस तरह से लिटरेचर करेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ये इसको पहले 2-3 दिनों में थीसिस आर्टिकल राइटअप से पहले आप इसको सिंपली फार्मुलेट कर देंगे, यू विल एबल टू गेट ऑल द आंसर्स दैट इज रिलेटेड टू योर रिसर्च. अब लिटरेचर कैसे करना है, इसके 2-3 सिंपल से स्टेप्स हैं. Searching for the existing literature in your area of study, reviewing the selected literature. आपको जो भी लिटरेचर करना है इट मस्ट बी सिलेक्टेड. आपका ये नहीं है कि आपको पानी पे स्टडी करना है और आप अपने पानी में जरासीम को ख़त्म कर रहे हैं और आप दूसरी काइंड ऑफ टर्न्स को देख रहे हैं, या आप एक जो सेंसर बना रहे हैं, आपको जो डेटा या मॉडलिंग कर रहे हैं एफडीएम से, आप दूसरे किसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी मेथोलॉजी या उसका कॉन्सेप्ट आ रहे हैं लिटरेचर में और थीसिस में. ये सबसे पहले जो स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फील करते हैं वो यही फेस करते हैं प्रॉब्लम के. स्टूडेंट जो फोकस्ड नहीं होते उसी टॉपिक में. मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट को और अपने मेथोलॉजी को. और जो भी आप मैंने आपको ये बताया कि आप जब भी लिटरेचर करेंगे तो आपको दो चीज़ें जहन में रखनी है. आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेम यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द सेकंड वन इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए. तो आप अगर ये दो चीज़ें करेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने में. और सेकंड थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट आपका लिटरेचर रिव्यू या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और जो क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सिलेक्ट. वो ऐसे ही है जैसे आपको एक थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट एक डेवलप करना है कि पहले अंडा है या मुर्गी आई. तो आप क्या करेंगे? लिटरेचर करेंगे. तो लिटरेचर करने के लिए ये आपको एक जहन में प्रॉब्लम होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं.
अगर मैं आपको कहूँ कि पहले अंडा या मुर्गी या, तो आप ऐसे तो जवाब नहीं देंगे। आप पहले लिटरेचर करेंगे, देखेंगे किस किस के कितने व्यूज़ हैं, क्या कर रहे हैं, किसने किस तरह से जस्टिफिकेशन दी है, हाउ दे आंसर्ड दिस क्वेश्चंस। ओके, अब द लास्ट वन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट के राइटिंग आर्टिकल जो होता है वो कैसे हम लिखते हैं, और इसमें व्हाट आर द मेन स्टेप इन आर्टिकल राइटिंग, और इसका एक आर्ट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अंडर ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी थीसिस करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में 100% क्लियर हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से आपको करना है। ये आपका एक मेथोडोलॉजी और आपका प्रॉब्लम आ गया और आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें क्लियर करें हो जाएंगी तो आप देन द सेकंड स्टेप देख आपके पास एक डेटा आ जाएगी डेटा कलेक्शन से। अब डेटा जो आएगी आप उसमें क्या करेंगे कि यू विल एनालाइज, आपको वो डेटा इसी तरह से एनालाइज करना है कि आपकी डेटा बिल्कुल एक डिफरेंट लगे। तो जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है दैट्स आल्सो एन आर्ट। जब आपको ये आर्ट आ जाएगा देन यू विल एबल टू पब्लिश very high number of articles and good articles in a high quality journals. So आपके पास जो आर्टिकल्स जो राइटिंग का स्किल्स है इट्स वेरी नेसेसरी। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप ऐसा हासिल कर सकते हैं कि आपके पास जो भी अवेलेबल लैब्स हैं आप उसमें काम करें, उस इक्विपमेंट्स को उसमें प्रोसेसेस को सीखें कि ये कैसे काम करता है, ये कैसी चीज़ें होती हैं। और द सेकंड थिंग इज दैट आप जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आर्टिकल को आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से देन आई टेल यू। Let's take an example that one of the my article that published in 2021, ये एक अच्छा जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.5 है। और आप इसमें देखेंगे मेरा एक टाइटल है, एक टाइटल है वो क्या है कि दिस स्टडीज वाज एक्चुअली अबाउट द disinfection of pathogenic bacteria. My background is actually from the environmental engineering. I'm working with a different related field of water and wastewater treatment. So ये मैंने एक टॉपिक उठाया, मैंने क्या किया कि मैंने एक चीज़ बनाई, उससे मैंने पोटेंशियल देखा कि ये बैक्टीरिया को मार सकते हैं या नहीं मार सकते। तो आप जो भी टॉपिक उठाएंगे, प्रॉब्लम उठाएंगे, वो इस चीज़ को उठाएंगे भाई इस चीज़ से ये हो सकती है नहीं हो सकती, ये आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसकी मेथोलॉजी बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको टॉपिक जो है, टाइटल जो हो वो एक टेक्निकल सिलेक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा नहीं है कि मुझे बैक्टीरिया मारने और ऐसा होना चाहिए। कि आपका जो टॉपिक हो, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है जब आप जर्नल में सबमिट करते हैं आर्टिकल तो उसी वक्त आपको रिजेक्ट भी हो जाता है कि ड्यू टू आपके भले अंदर जो भी हो वो कंटेंट्स आपके एनालिसिस भले डिफरेंट हो या गुड क्वालिटी के हो, मगर टॉपिक मस्ट रिफ्लेक्ट, जो आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो एक डिफरेंट होनी चाहिए टॉपिक में। और टॉपिक जो भी आप देखेंगे, टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करें, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर करते हैं आपको एक आइडिया आता है दिमाग में कि मुझे किस तरह से टॉपिक को सिलेक्ट करना है और रिफॉर्मुलेट करना है, राइट। उसके बाद आते हैं जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है आप उसमें हर पेपर के उसके एंड में लिखते हैं कि आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे उस आर्टिकल के बिल्कुल इंट्रोडक्शन के एंड में यू विल फाइंड इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं और किस तरह से करेंगे और क्या पॉसिबल फाइंडिंग्स होगी। जो भी आपकी एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इंट्रोडक्शन के लास्ट जो पार्ट होता है आपका 4 to 5 लाइंस का, वो उसमें आ जाता है। द सेकंड आर्टिकल फ्रॉम माय आर्टिकल, अब इसमें देखेंगे उसके बिल्कुल लास्ट में जो 3 लाइन्स है वो आप हमारी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टडी के उसको वो हाईलाइट कर रहा है। तो जो इंट्रोडक्शन जो आर्टिकल राइटअप में सबसे पहले हम टाइटल को देखेंगे, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे,
और उसके इंट्रोडक्शन के बिल्कुल एंड में हमारा ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको लिखने होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल राइटअप में लिखने होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि लास्ट जो 4 से 5 लाइन्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, उसमें हमारे जो नॉवेल्टी फैक्टर होता है या जो भी हमारे डिफरेंट मेथोलॉजी है, एक नॉवल मेथोलॉजी मैंने चीज़ फाइंड की है या किया है मेथड, वो सारा इसमें हम लिख सकते हैं। और टॉपिक की अगर हम बात करें, द टाइटल शुड बी साइंटिफिकली डिफरेंट। आपका जो टॉपिक है बिल्कुल एक कैची होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वो तब आता है जब आप उसको लिटरेचर करेंगे। और लिटरेचर कैसे करेंगे? जब आप क्या करें कि हाई क्वालिटी के जो भी जर्नल्स आप हैं वो टारगेट करें, द दोज दैट हैव हाई क्वालिटी इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो जो भी इम्पैक्ट फैक्टर जिसका अच्छा हो आप उसको ले लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यू करें। आप जितने ज़्यादा आर्टिकल को रिव्यू करेंगे, आपको टाइटल जो भी होगा आपको जहन में उस तरह से आपको रिफाइन होता जाएगा, तो आप उसी तरह से अपने टाइटल को रिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मोस्ट ऑफ द जर्नल्स इन मैनी केसेस दे डिमांड फॉर द ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, राइट? जो भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आप क्या करते हैं, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरी अपनी रिसर्च का जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो आप बयान करते हैं। और आप उसमें रिजल्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मेरी ये ऑब्जेक्टिव था, उसमें ये काम किया, उसकी ये फाइंडिंग्स हुई। तो आपका जो एक पेज की पिक्चर होती है, आपकी एक ग्राफ जो होता है, आप उसमें ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में आप उसमें फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, या एक प्रोसेस जो होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि मेरा एक थीसिस का, मेरा एक रिसर्च का जो प्रोसेस है वो इस तरह से, मैंने इस तरह से किया है, देन आई हैव दीज काइंड ऑफ फाइंडिंग्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? द इंट्रोडक्शन जो भी आप लिखेंगे उसमें आप जो भी लिखें वो आप आपके टॉपिक से, आपके एरिया से, आपके प्रॉब्लम से, आपके कॉन्सेप्ट से मस्ट बी रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अब मैंने फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया की बात की है, तो द इंट्रोडक्शन मस्ट कंटेन the concepts about bacteria and treatment and processes. It does not include the other kind of pollutants and processes. आप जो भी काम करेंगे, टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन हो वो एक फिक्स्ड होना चाहिए आपके टॉपिक पे। सो यू हैव टू मस्ट बी टेक केयर इन दिस स्टेप। जो भी आपका इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन की जो भी आपकी 4 से 5 एट द एंड ऑफ लाइन्स आएंगी, you have to reformulate and it must contains the aims and objective of your study. उसके बाद आपका आता है सेक्शन जो होता है मटेरियल्स एंड मेथड्स। इसमें आप मेथोलॉजी लिखते हैं कि आप किस तरह से आपने ये काम किया है। आपने छोटी सी छोटी चीज़ भी इसमें लिखनी है। यू हैव टू कीप इन माइंड आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने जब वो सबमिट करा दिया कि आपने वो जर्नल के रिव्यूअर ने किसी ने भी वो कमेंट दे दिया, तो आपको वो बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो आर्टिकल जो होता है वो आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपकी जो फर्स्ट ड्राफ्ट जाए सबमिशन के लिए, तो उसमें आप फोकस करें, आपकी पूरी मेथोलॉजी फोकस्ड हो, साइंटिफिकली और टेक्निकली बिल्कुल प्रूव्ड हो और सही तरह से हो। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस ऐड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं एक्सेप्टेंस के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपको जो भी चीज़ आप उसमें ऐड कर रहे हैं, चाहे उसको घुमा रहे हैं किसी भी चीज़ को या इन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको चीज़ लिखना है कि मैंने ये चीज़ की है, कितनी मर्तबा की है। तो आपको एक पूरी फोकस जो है वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। और मेथोलॉजी में आप जो भी चीज़ लिखेंगे यू हैव टू स्प्लिट इन डिफरेंट पार्ट्स। आपने जो भी मटेरियल बनाए हैं यू हैव टू एड फ्यू लाइंस दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल। आपने कैसे बनाया, आपने 4-5 लाइन उसकी ऐड कर रहे हैं। आपने उसको कैसे करेक्टराइज किया, आप 4-5 उसकी लाइन ऐड करें। आपने जो मॉडल बनाया है वो कैसे आप उसको सिमुलेट कर रहे हैं। आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पाइथन आप यूज कर रहे हैं तो किस तरह से आपने मॉडल बनाया, आप किसी इस तरह से सिमुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आप द द थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट आपकी करेक्टराइजेशन। आप जो मॉडल आपने जो बनाया है, आप उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपकी करेक्टराइजेशन है, आपको क्या मिली है।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे करेक्टराइज करने, ये भी एक आर्ट होता है. द मेनी स्टूडेंट दैट आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, उनके पास एक डेटा बहुत अच्छी होती है मगर उसको रिप्रेजेंट करने का आर्ट नहीं होता, एक स्किल्स नहीं होते कि उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना. तो सबसे पहले इसमें यह चीज़ है कि आप जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करें, आपकी डेटा बिल्कुल एक डिफरेंट और आपकी बिल्कुल लॉजिकली और टेक्निकली आपकी डेटा सही लगनी चाहिए. और जो भी आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं. जितने आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज़ करेंगे और जितनी आपकी ज़्यादा एनालिसिस होगी, उतनी आपकी कंस्ट्रक्टिव जो होगी वो आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन रहेगा, और आपकी कैरेक्टराइजेशन और आपकी रिजल्ट्स के जो सेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. आपके जो ग्राफ्स बने वो एक डिफरेंट लुक होना चाहिए उनका देन अदर जो भी आपकी प्रीवियस जो है लिटरेचर आपने किया है. जे भी आप डिफरेंट उसको डिफरेंट तरीके से उनको शो करेंगे ग्राफ्स को, आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो तो आपकी ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और इसी तरह से जैसे मैंने एक टारगेट किया था कि मैंने जो चीज़ बनाई है मैंने उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज किया और डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया. आप ये जो डेटा देख रहे हैं, मैं ये इट्स वेरी रेयर इन लिटरेचर. आपको लिटरेचर में ऐसी डेटा नहीं मिलेगी. हालांकि वही डेटा ऑलरेडी लिटरेचर में अवेलेबल है और लोगों ने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मगर मैंने उसको इट्स रिप्रेजेंट किया एक डिफरेंट तरीके से. उसको एक ग्राफ भी लगा लिया, उसको एक पिक्चर्स लगा ली, मैंने उसको शो भी कर दिया साइंटिफिकली. तो मेरी जो एक्सेप्टेंस जो होती है और वर्थ जो होती है एक आर्टिकल की वो ज्यादा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो और कैसे रिप्रेजेंट हो. द लास्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड इज एक्चुअली कंक्लूजन पार्ट. आप कंक्लूजन बहुत एक सिंपल लिखेंगे और जो भी आपने कंक्लूड किया है अपनी रिसर्च में वो आप लिखेंगे, और इसमें कोई भी आपकी चीज एक्स्ट्रा नहीं आएगी. आपको रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के पार्ट होता है जो भी आपके आर्टिकल का, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी पार्ट पास्ट की जो भी जो रिसर्च हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो रिसर्च इस टाइम पे की है मेरी रिसर्च से इतनी मिलती है या इससे ये फाइंडिंग हुई, मेरी रिसर्च से ये फाइंडिंग हुई. और इस तरीके से आप अपनी पूरी डिस्कशन जो है 1 से 2 पेजेस के आप डिस्कशन उसी तरह से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और लिखेंगे. और बिल्कुल आप जो डिस्कशन करें वो साइंटिफिकली होनी चाहिए. वो डिस्कशन आपके मेथड से भी हो सकती है, वो डिस्कशन आपके रिजल्ट से भी हो सकती है. जो भी आपके रिजल्ट्स हैं आप उसको फोकस करेंगे इस सेक्शन में और आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने की है, ये फाइंडिंग्स की है, इस तरह से ये हो सकता है, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो. तो कंक्लूजन में आप जो भी होगी वो आप लिखेंगे कि मैंने ये चीज़ एनालाइज की, ऐसे एनालिसिस की और ये फाइंडिंग्स थी, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मेरी ये आई. तो आपकी ये कंक्लूजन होती है. आप उसमें एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड कर सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशन. और जो सबसे अहम भी पार्ट होता है आर्टिकल का वो आपके रेफरेंसेस होते हैं. जितने आप अच्छे रेफरेंसेस, लेटेस्ट रेफरेंसेस और जो भी आप रेफरेंसेस उठाएंगे वो गुड गुड क्वालिटी जर्नल्स के उठाएंगे, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके आर्टिकल के, आपके लिटरेचर के और आपके रिसर्च के उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है. कि आप अपने जो भी टॉपिक आपने आपके टॉपिक में आपके रिसर्च आर्टिकल में जो जितने भी आपने रेफरेंसेस, साइटेशंस और आपने जो मेथड जो भी आपकी डिस्कशन हुई है वो आपने उस पेपर्स की डिस्कशन उठाई है जो ऑलरेडी एक अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं. राइट. The last one that is very important for the undergraduate and graduate students, that how we can select a good topic that we can publish a good article during undergraduate and graduate level. That's very important कि आप कैसे फाइंड करें और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को, प्रॉब्लम को. तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करें अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे, आपको अगर फोकस करेंगे कि मुझे इसमें एक आर्टिकल अच्छा पब्लिश करना है तो आप कर पाएंगे. और आर्टिकल टॉपिक कैसे आपको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है जैसे हमने बताया कि हमें एक लिटरेचर करना है और लिटरेचर भी करना है वो है गुड क्वालिटी जर्नल्स की. आप जो भी जर्नल लेंगे उसमें आप स्पेसिफिक
ली उस टॉपिक को आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन किस तरीके से आपने डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लीकेजेस हैं, डिटेक्शंस हैं, डैमेजेस हैं, आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें बिग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस कर सकते हैं, या आप उसमें कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है या किस डिफरेंट डिफ्यूजन जो मॉडल्स होते हैं आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ मॉडल दैट यू इंक्लूड इन योर रिसर्च, इट इंक्रीज योर वर्थ ऑफ द आर्टिकल एंड रिसर्च। तो आपने वो चीज़ जहन में रखनी है कि मैं इसमें क्या चीज़ टॉपिक में ऐड करूं या टॉपिक कैसा सिलेक्ट करूं। टॉपिक आपका सिलेक्ट होगा अपने लिटरेचर से, और टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी जहन में ये चीज़ इट्स रखनी है कि आप जो भी मेथड फाइंड कर रहे हैं, मेथड फॉलो कर रहे हैं, आपके मेथड में आपकी नॉलेज उसमें बिल्कुल होनी चाहिए कि आप उसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। और दूसरी चीज़, आप अपने आप में ये स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं राइटिंग आर्टिकल का। उसके इट्स वेरी सिंपल कि आप लैब में काम करें, आप अपने जो सीनियर्स हैं उसके साथ देखें, और आप जिसके पास जो भी अवेलेबल इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में, आप उसको देखें, उसकी फंक्शनिंग पढ़ें, उसके आप प्रोसेसेस पढ़ें, आप उसका मैकेनिज्म पढ़ें, इस तरीके से कैसे हो सकता है, इसको मैं डिफरेंटली कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अपने उस तरीके से, और जो भी एक मॉडर्न जो प्रॉब्लम है आप उसको उठाएं, आप उसकी फिर आप उसको सिलेक्ट करें थीसिस के लिए। आप उसमें अच्छे तरीके से मेथोडोलॉजी बिल्कुल सही तरह से कंस्ट्रक्ट करें, सीनियर से, प्रोफेसर से, सुपरवाइजर से गाइडेंस लें या एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। उसके बाद आप उसको थीसिस को आगे लेके जाएं। आप जब उसकी फाइंडिंग आपके पास आ जाएगी, देन यू विल एबल टू रिप्रेजेंट योर डेटा। आप अपने डेटा को उस वक्त आप रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि हमें ये डेटा है और ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट करनी है, जो भी आपने थीसिस टॉपिक लिया। आपने अगर एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल पब्लिश नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो आप और कुछ नहीं, एक अच्छा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो है वो भी आप पब्लिश कर दें तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। व्हेन आई वाज इन अंडर ग्रेजुएट, मेरा एक सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस पेपर था, इट्स अराउंड 7 to 8 पेजेस। उसके बाद जैसे ही मैंने काम किया लैब में, इक्विपमेंट के बारे में सीखा, उसके प्रोसेसेस फील्ड बहुत ज़्यादा की, लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, और अपने आप को मैंने कन्फाइन कर दिया कि मुझे इतने रोज़ आर्टिकल्स पढ़ने हैं और इससे ये चीज़ मुझे सीखनी है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप यू विल बी एक्सपर्ट। सो आप सारी चीज़ें कोई एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको ये करना है। आपने एक आर्टिकल्स ही नहीं पढ़े, आपने लिटरेचर ही नहीं किया, उस चीज़ को बारे में सीखा ही नहीं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी उस चीज़ को पब्लिश करने में। तो आपका अल्टीमेट जो गोल और एम होना चाहिए वो आर्टिकल पब्लिश होनी चाहिए, और इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉस्क इन अंडर ग्रेजुएट लेवल। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसकी चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं, और आप इसकी चीज़ को कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। सो थैंक यू।